ضلع وقار کے تانڈور میں مجیب خان چیئرمین جی ایم کے گروپ آف ریئل اسٹیٹ بلڈرز اینڈ کنسٹرکشن و فاؤنڈر چیئرمین اے ایس جی ایم کے چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے تانڈور بلدیہ کے حلقے شاہی پور کے علاقے میں تعمیر کردہ عالی شان مسجد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر منعقدہ خصوصی تقریب سے اپنے خطاب میں مولانا میر لطافت علی شیخ التفسیر جامع نظامیہ نے کہا ہے کہ مساجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ روئے زمین پر مساجد اللہ کا سب سے پسندیدہ مقام ہے اور مساجد کے امام مشاعرے کے بھی امام و قائد اور رہنما ہوتے ہیں۔ تانڈور شہر میں عالی شان مسجد کا بنانا مجیب خان کا قابل فخر کارنامہ ہے۔ اس تقریب میں محمد مجیب خان بانی و متولی مسجد سیدنا علی مرتضیٰ و صدر نشین اے ایس جی ایم کے ٹرسٹ کی جانب سے پہلی مرتبہ تاریخی طور پر تانڈور کی مساجد کے 52 مساجد کے ائمہ و مؤذنین کو بااختیار اور خود مکتفی بنانے اور ان کے معاشی استحکام کی غرض سے مکانات کی تعمیر کے لیے اراضی کی تقسیم کی گئی۔ اس کے علاوہ ریاستی تلنگانہ اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار وفادہ اے ایس جی ایم کے اسلامک سینٹر چیریٹیبل ٹرسٹ کا افتتاح انجام دیا۔ جبکہ ہم کو پتہ چلا ہے سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تم کو رات دی ہے اوڑھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور دن دیا ہے کام کرنے کے لیے۔ اس لیے تمام لوگ فجر کے پابند بن جائیے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اچھے سے وضو کرتا ہے، یہ حدیث دل میں اتر گئی تو کل سے کوئی بھی نماز مسجد میں آ کے پڑھے گا، گھر میں نہیں پڑھے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ اس کو نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے، 27 درجے باجماعت نماز ادا کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم تب الیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہم تمام لوگوں کو فرشتوں کی دعائیں ہونا ہے نہیں ہونا ہے؟ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ మీరు ఎవరిని అడుక్కొని भीख मांगने का जरूरत नहीं है। अपना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज पूरा बचा लेके ये कर लिए तो किसी से भीख मांगने का जरूरत नहीं है बोल के मेरा ये है। क्योंकि अजमतुल्ला साहब मैं भी आपको घर को बुला के भी एक बार बोला था ऐसा हो रहे पूरे जमीन पूरे खाली कर रहे, वो रोकना पड़ेगा। गए सो सरकार, गए सो हुकूमत में एक जमीन भी नहीं छोड़े। मेरा कोडंगल में भी 48 एकड़ बेच लिए तो मैं वो रोक के कलेक्टर को बोल के वो पीओटी में लगा के वो बेचने नहीं दिया, आपको भी मालूम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए अजमतुल्ला साहब ने आप लोगों के साथ में रहेंगे, हम भी आपके साथ में रहेंगे। आप बचा के ये करें तो कल के दिन ये स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन और कुछ इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स के लिए ज़मीन होना बोले तो कहीं नहीं मिलेंगे वो, क्योंकि भाव भी बढ़ रहे ज़मीनों का, ज़मीन मिलने का बहुत मुश्किल हो गया। वो ज़मीनों को पूरा बचा लेके ये करा तो कुछ भी काम नहीं आएंगे। इसलिए मैं इतना बड़ा काम लेके मौजम और इमाम लोगों के लिए वो घर का पट्टा देने के लिए ये मुजीब साहब को मैं बहुत ये कर रहा हूँ कि मुख्य का इस मुबारक महफिल के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जिसपे एक ही शहनशीन पे इतने मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत कम जमा होते हैं। और आज सरजमीन तांडूर में ये रौनक अफरोज़ जो मंज़र देखने को मिल रहा है, इसके लिए इस मुंतज़मीन को मैं ख़ास तौर पर दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मैं मुजीब खान साहब को
आज के एक और अल्लाह के घर को तामीर करने के लिए मस्जिद सैयदना अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह के और इफादा इस्लामिक सेंटर, उसके साथ साथ क्योंकि इस्लाम दो चीज़ों पर टिका हुआ है, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूक अल्लाह का ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाक परवरदिगार ने हम तमाम लोगों को इस मौके पे जमा किया। मैं इस बैच पे जो बुजुर्ग हजरात है, इन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तरकत रेड्डी साहब, हमारे मनोहर रेड्डी साहब, अभी महेंद्र रेड्डी साहब चले गए, असमतुल्लाह साहब और तमाम जो बुजुर्ग हजरात यहाँ पर मौजूद है, अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों की, तांडुर के नौजवानों की और अइम्मा और मौजूदीन की, तमाम लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए अपना वक्त निकाला। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत इन लोगों का शुक्रिया, आप तमाम नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। या अइम्मा और मौजूदीन की खुशियों के अंदर आप अपना वक्त निकाल कर इनकी खुशियों में शिरकत करें। अल्लाह इसका बेहतरीन आप लोगों को अजर देगा। अब यहाँ पर जो है ये जलसा रखने का ये दो मकसद है। पहले तो मस्जिद का इब्तिदा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तांडुर की सरजमीन पे और एक मस्जिद तामीर भी, अल्लाह का घर और बढ़ गया, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे अजमत साहब बोले मस्जिद का जो है तामीर करना, उसके बाद उसको आबाद करना बड़ी बात है। कई लोग यहाँ पर वही जिक्र करें, मस्जिद तो हम तामीर करेंगे मगर उसके हुकूक अदा करना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। मस्जिद तामीर होने के बाद हम खुश हो जा रहे, उसकी जो है हक़ अदा नहीं करेंगे तो रोज़ महशर में वो मस्जिद हमसे सवाल करेंगी, तो हम जवाब देना पड़ेगा। तो इसकी फ़िक्र भी हमारे को होना चाहिए। जब मस्जिद जो महल्ले के अंदर जब बनेंगी तो महल्ले वालों के हुकूक अदा करना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर पूरे जो है तौर तरीक़े बताए हम लोगों को, क्योंकि मस्जिद के अंदर खाली नमाज़ पढ़ना ही नहीं है। मस्जिद के महल्ले के अंदर कोई भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, या मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उनके तमाम मसले मसाइल जो है मसाजिद से पहले जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हल करके बताए। हर चीज़ वहाँ से जो है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते थे। कोई बीमार है तो उसके वास्ते मदद होती थी, कोई बेरोज़गार है तो उसके वास्ते मदद होती थी, क्योंकि तालीम का मसला है तो उसके लिए भी उसकी मदद होती थी। मसाजिद अक्सर जो है इबादत के साथ साथ खिदमत खल्क़ का भी ज़रिया है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। और अइम्मा और मौज़ूदीन का जो मुकाम है